authority on this subject. I just want to say I'll just speak from personal experience. I don't read the newspapers. I just been molested, raped, killed, dumped, body found dumped somewhere, some suicide, some. When my children were small at the time, and how do you start your day knowing something like this has happened somewhere in the world? Somewhere in the world, no. Somewhere in your city, maybe. Somewhere just further down in the country. I slowly but surely just gave up reading the newspapers in the morning. This was one of the reasons, one of the main reasons. I remember when my children were really tiny, after reading these pieces of news, it would fill me with so much fear and dread. I wouldn't let them go anywhere on their own. They always had to be with the maid. Even my son, I'm saying this as a parent because if anybody would like to hear कि आप क्या करते थे या how did you take care of your children, this is how I did it, just to kind of ensure कि कुछ हो नहीं. जब भी जाते थे मैं किसी घर में किसी मेड को या उनकी मेड को बोलती थी जब तक वो जाएं वो तुम्हारी हमेशा नज़र के सामने रहे बच्चे. Even if they're playing in the playground, that's fine, you don't have to be playing with them, but नज़र के सामने रहे. I'd never send them with the drivers. I'll to befriend no stranger. I may sound a little over careful, but it's okay. It's okay if it's your child, you take care. I also took the same kind of care with other people's children. उनके friends कभी घर पे आए तो I never sent them back with my drivers, no matter how much I trust those people. I said no, somebody from the house and maybe my child has to go along and drop that kid to their house and then come back. I didn't even allow people to kiss my children on their face. I can't remember when I have last done it. प्यार आता है, hug कर लो, kiss them on their heads. No need to come anywhere here. Okay, I've never said this before, and I'll say it now. When I was very small, about 6-7 years old, really quite tiny, we used to have, I used to go to Delhi for my summer holidays. And you know how you have uncles and aunties and everybody. And there used to be this one uncle who used to come and he was this really cool and suave kind of guy. And he'd come and he'd say hello and then he'd kiss me, smack me on my lip. And I remember I was that small, but I didn't like it. And once it happened, another time it happened. Next time I'd see him even approaching the house, I'd run away to the other corner and not come till everybody in the house was around, and then I'd be around. Maybe it's a Western kind of culture, maybe they think it's okay. But as a child, I know I hated it. And I would not want my children to go through it. So even if I want to kiss my children, I'll kiss them on their head, I'll smack them nice and tight over there. I won't do it. Jay gets upset with me, my husband. He's like, what is wrong with you? I'm like, it's okay. Kiss them on the heads. No doing it on the face. You don't know what that kid is going through, okay? So just don't do it. And these are the things I have done. Now, you may also think, oh yeah, okay, you're kind of rich and you can have 3 maids running after your children. No, I want to tell parents, no. If you have the money to spend on your clothes and your phones and your cars and your movies and your parties, you can definitely spend a little more to make sure that your child is safe. A little more attention, and if it takes, hire a little help whom you can completely trust and take care of your children. So that's it from me as a parent. And I'll end with something that I read just yesterday, and it's from Mahatma Gandhi. And he says that if the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. So I again
extend my very best wishes to Uma, Preeti, Ravi, to ma'am. I hope they find themselves, they do more than find themselves. They find in themselves a wealth, a fortune in this service that they are doing to others. So, thank you very much for having me this morning. I must tell you, Juhi just gave away most of the tips that we had written for parents. So you must not say that you have no authority to speak on this issue. What she just talked about was a safety rule in her house that she would allow children to be kissed only on the head, and that comes under the family care safety plan, which is there on the website. So you have, as a parent, I think you've nailed it, Juhi. Thank you so much. I would now like to invite Mr. Nagesh Kukulur to come and say a few words. Thank you. Morning. And education for the last 40 years now. And ma'am also founded Pratham, which is India's largest education NGO. So, Mrs. Lambe, if you could just come and... Thank you. Thank you. All right. Thank you. Thank you. Hello. इसको भी पकड़ लो ना। भाई इसको भी थैंक यू। माइक कौन पकड़ेगा? पकड़वा देते। राजकुमार ये डाल दो। सॉरी। अरुण इधर है। कहाँ है आप? Rolling, guys. The bites. Rolling. इधर से शुरू करो। Let me hear some words of wisdom. जी हमें आपने ठीक है बोलते हुए सुना, लेकिन आपने अंग्रेजी भाषा में बोला था, हिंदी में बोलेंगे तो ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाएगा जो आप बताना चाहती हैं। मैं एक्चुअली हिंदी में बोलना चाहती थी, कहीं इंग्लिश में शुरू हो गया तो एक फ्लो बन गया। हाँ, मैं क्या कह रही थी वहाँ पर कि एज अ पेरेंट मैं कुछ चीज़ें मैंने फॉलो की हैं, क्योंकि हर आए दिन आप अखबार खोलते हैं, खोलने की ज़रूरत भी नहीं है, कहीं ना कहीं फर्स्ट पेज पे कुछ ऐसी दर्दनाक न्यूज़ होती है कि किसी छोटे बच्चे के साथ बलात्कार हो गया, उसको काट दिया गया, मार दिया गया, उसकी बॉडी यहाँ मिल गई, छोटे छोटे बच्चों के साथ तो मतलब, और खुद अपना बच्चा हो घर पर, तो ऐसी न्यूज़ पढ़ के तो ऐसे दिल में चौंक जाती थी, मुझे बहुत दुख और बहुत भय हो जाता था। तो आई स्टार्टेड डूइंग सर्टन थिंग्स विच आई एम हैप्पी टू शेयर एज अ पेरेंट, कि आप भी प्लीज़ इसे फॉलो करिए कि मैंने कभी अपने बच्चों को अकेले कहीं नहीं भेजा। हाँ, मैं जानती हूँ आजकल मोबाइल फ़ोन है, आप बोलेंगे वो मोबाइल फ़ोन उनको दे दिया, प्लीज़ दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। किसी को साथ में भेजिए, किसी औरत को साथ में भेजिए। मैं अपने बच्चों को कभी अपने ड्राइवर्स के साथ, अपने मेल सर्वेंट्स के साथ कहीं नहीं, और अपने ही बच्चों को
अपने बच्चे कभी, क्योंकि सारा वक्त मैं नहीं हो सकती, कोई तो एक औरत उनके पास रहे। खेलने गए हैं, कोई बात नहीं, दूर भी खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, मैंने कहा अपनी नज़र के सामने रखना, बस नज़र में होना चाहिए बच्चे कि कहाँ हैं। दूसरों के बच्चे भी आपके घर आए तो ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उन्हें अपने उनके घर सही सलामत पहुंचा दीजिए। सो सेम थिंग आई वुड डू के आए हैं घर, अच्छा ठीक है, फिर मेरा अर्जुन जाएगा साथ में, उसकी मेट जाएगी, उनको वापस घर छोड़ कर आएगी। मैंने उनको जब छोटे ही थे तो तब तो मैं और भी डरती थी, किसी से स्कूल के बाहर जाकर किसी से स्वीट किसी अंकल ने दिया, कोई भी हो मत लेना, कोई ज़रूरत नहीं। किसी ने कहा कि मैं आपकी मम्मी का फ्रेंड हूँ या डैडी का फ्रेंड हूँ, मैं आपको घर लेके जाऊँगा, बिल्कुल हिलना नहीं वहाँ से। मैं अपने बच्चों को बता दे, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर इतना ज़रूर फर्मली कह दीजिए, उनको समझ आ जाता है। एक और चीज़ आजकल बहुत हो गया, स्लीप ओवर्स, कि अपने फ्रेंड के घर पे स्लीप ओवर्स हो रहे। मैंने बोला पूछना भी मत मुझसे, कोई स्लीप ओवर नहीं होगा। अपने घर में, मतलब यानी कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर्स के साथ आपको रात गुजारनी है, ठीक है, मुझे पता है कौन से घर में कहाँ है। फ्रेंड का तो नाम भी शुरुआत भी मत करना। और मुझे लगता है बच्चों ने कभी ऐसा नहीं कहा मम्मी आप ही हमें रोकती हो। बच्चों को ठीक लगता है कि वो सिक्योर हैं। आप अगर किसी ने कुछ कहा तो बोले कि मम्मी ने अलाउ नहीं किया, तो आपके ऊपर ब्लेम डाल देते हैं, एंड जो पेयर प्रेशर होता है उससे भी निकल आते हैं बच्चे। सो प्लीज़ बी फर्म। हम बहुत टाइम और पैसे वेस्ट करते हैं बहुत सारी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर, अपने कपड़ों पर, अपने मोबाइल फ़ोन्स पर, अपनी गाड़ियों पर, अपने मूवीज़ पर, अपनी पार्टीज़ पर। थोड़ा ध्यान, थोड़ा अगर कहूँ कि थोड़ा अगर एक्सपेंस देकर, यू नो, यू नीड टू हायर द राइट हेल्प, डू इट, कीप योर चिल्ड्रन एटलीस्ट सेफ। एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ एज अ पेरेंट। एंड ऑफ कोर्स यहाँ आकर मुझे ये सब समझ आया कि ये जो वेबसाइट है, इससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा, एक हेल्प मिलेगी, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ कहना है, लोग झिझक जाते हैं कुछ कहने के लिए। यहाँ है एक जगह, एक सेफ जगह जिससे आप संपर्क में रह सकते हैं। एंड इट वाज अ लवली लुकिंग वेबसाइट। आई सेड कि किसने डिज़ाइन किया है। इट्स सच अ प्लेजेंट लुकिंग वेबसाइट कि हाँ, यहाँ आकर आपको लगता है ठीक है, सब ठीक है, मैं जो कहना चाहती हूँ मैं कहूँगी, जो सुनना चाहती हूँ, जो पढ़ना चाहती हूँ पढ़ सकती हूँ। सो आई कंग्रेचुलेट देम एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। बहुत ही अच्छी सर्विस है जी। अगर हम बात करें सेक्स बोलती, जैसे नागेश ने स्टेशन बताया कि सेक्स बोलती सबकी रोटी खड़ी हो जाती है, कोई बात करना नहीं चाहता। समर गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, जो कि बहुत डाइसी है कंट्री में। वो आप दें ना दें, आई डोंट नो, संस्कार दीजिए, अच्छी सोच दीजिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए ताकि यूथ भटक ना जाए। आई थिंक ये सब देना ज़रूरी है ताकि नींव सही रहे तो आगे चलकर ये प्रॉब्लम्स हो नहीं। दैट्स ऑल आई कैन से। मूवी फ्रंट में आप क्या कर रही हैं, कुछ बताएंगे? मूवी फ्रंट में आप क्या कर रही हैं, कोई कौन मूवी आप? भाई यार अभी वो ना वहाँ से चिल्लाएंगे, उनका पहले इंटरव्यू ले लीजिए, मेरी मैं बात करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। इसके बारे में आपने काफ़ी डिटेल में लक्ष्मी में बहुत कुछ समझाया था। अगर आप आज की बात करें, जितनी क्राइम रेट बढ़े, कितने हद तक आपको लगता है कम हुई है या कितनी अवेयरनेस बढ़ी और ये वेबसाइट किस तरह से हेल्प कर रही है? देखिए, लक्ष्मी के थ्रू मेरे को एक छोटा सा विंडो मिला इस रियली घटिया द एक्साइटमेंट ऑफ जूही। ठीक है, एनीवे, जब से मैंने लक्ष्मी बनाया और उसके रिसर्च के थ्रू भी मुझे एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी मिला कि इस सोसाइटी के इस गंदे साइड को देखने की। एंड इसका नंबर 1 वजह है आई थिंक वी शुड वेट। लक्ष्मी के जर्नी के थ्रू उसके प्री प्रोडक्शन के टाइम जो रिसर्च कर रहा था मैं, और
फिर फिल्म बनाने के बाद उसको अलग अलग से NGOs को दिखाने के बाद, फेस्टिवल्स ले जाने के बाद, ये पूरी जर्नी में मुझे एक मौका मिला इस सोसाइटी के इस गंदे एस्पेक्ट को देखने की। ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, और नंबर 1 रीज़न इसका ये है कि इसके बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। ये 2 लेवल्स पे होता है, एक जो फोर्सबली बच्चों को ले जा कर के ट्रैफिकिंग होती है, बट दूसरा जो हम इसको बहुत कैजुअली लेते हैं, इसको कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं, वो है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, जो हर घर में होता है और कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। और आजकल अगर देखा जाए बड़े होने के बाद, ये मेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं उसका नंबर 1 रीज़न ये है कि बचपन में वो चाइल्ड का कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था। सो आज ये ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने का एक ही बस मकसद है कि इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ अवेयरनेस दिया जाए, बस इट्स सिंपल एज दैट। आपने स्टेज पे है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह इनिशिएटिव? सी प्रेरणा एक अमेजिंग फाउंडेशन है भैया, 2 मिनट के लिए, उसके बाद या थैंक यू। प्रेरणा की एक ऐसी अमेजिंग फाउंडेशन है जो मेरे ख्याल से पिछले 20 या कम से कम 20 साल से प्रीति और प्रवीण इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और उनका बस ये सिंपल सा चीज़ रहा है कि बच्चों की देखभाल करें बस। और थ्रू देम ये इनिशिएटिव आरंभ करके लॉन्च किया गया है, विच इज़ टू क्रिएट दैट ऑनलाइन पोर्टल। एक तो ग्राउंड वर्क आपको करना है, पर आज के इंफॉर्मेशन के ज़माने में इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टूल। जब मैं लक्ष्मी बना रहा था, इस सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल था ही नहीं, तो अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से मैं लोगों को कॉल करता था और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। तो कम से कम नाउ देयर इज एन ऑनलाइन रिसोर्स कि आप यहाँ पे जाएं एंड यू गेट इन्फॉर्मेशन। अगर आपने भी स्टेज पे जैसे कहा कि सेक्स इज स्टिल कंसिडर एज अ टैबू और कोई इसके बारे में बात नहीं करता, समवेयर इंडियन गवर्नमेंट को सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर फॉर, इट इज वेरी डाइसी राइट नाउ सेक्स एजुकेशन। आई कम्प्लीटली एग्री। मैं तो सोचता हूँ इस सब प्रॉब्लम्स की जड़ एक ही सिंपल चीज़ है कि हम सेक्स को एक बहुत ही गंदा चीज़ समझते हैं। जब ज़ुबान से निकलता है तो एक सर्टेन एलिमेंट ऑफ गिल्ट के साथ निकलता है। कोई भी इसके बारे में बात करता है तो ऐसा बात करते हैं, हाँ यू नो, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये हाउ इज़ दिस अ बैड वर्ड। जब तक हम बचपन से इस वर्ड को एम्ब्रेस करें, इसके प्लसेस समझें, इसके माइनसेस समझें, जैसे हर चीज़ की होती है, पेरेंट्स, टीचर्स, सब एंड ज़्यादातर टीचर्स इन स्कूल इसको नॉर्मलाइज कर दें। आप सेक्स एजुकेशन के क्लासेस के पहले 2 दिन देखिए, पहले दिन सब हैं ऐसे हंसेंगे, उसके बाद बोर हो जाएंगे। आप वही नेकेड पिक्चर्स मेल और फीमेल के बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे, पहले 2 दिन हंसेंगे, उसके बाद देयर इज नथिंग मोर टू लाफ बिकॉज देयर इज नथिंग मोर टू हाइड। ये अगर हम नॉर्मलाइज करें तो आई फील वेरी स्ट्रांगली कि आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे। आपने स्टेज पे कहा कि आप इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाना चाहते हैं, क्या उसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है, क्या स्टेटस है? उसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है, इसकी स्क्रिप्ट भी बन चुकी है। बस ये लाइन को टैकल करना है कि इसको टिटिलिएशन के जैसा देखा नहीं जाए, बिकॉज प्रॉब्लम अगेन सेक्स के बारे में जब भी बात करें तो ऑलरेडी आप लोग समझेंगे कि ये नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने में एक ज़िंदगी लग जाती है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट इशू कि ये लाइन किस तरह टैकल करें जहाँ लोग इसको ना समझे कि ये ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ टिटिलिएशन किया जा रहा है। कुछ और डिटेल बताएंगे स्टोरी का प्लीज? सी आई ऑलवेज, जब तक फिल्म शुरू हो नहीं जाती और ज़्यादातर फिल्म बन नहीं जाती, मैं इसके बारे में बात करना नहीं चाहता, क्योंकि एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्क्रिप्ट राइटर इतने सारे स्टोरीज रहते हैं। गलती से भी मीडिया में आप बता दें कि अच्छा आप ये फिल्म कर रहे हैं, तो अगले दिन से शुरू हो जाएगा, अच्छा वो फिल्म का क्या हुआ, वो फिल्म का क्या हुआ। सो लेट मी, व्हेन आई गेट दिस फिल्म गोइंग, 100% इसके बारे में बात करूँ।
script is locked, if I'm not wrong. Script is done. And actors? No, see, there we go. Nothing on the horizon. So, Thank Yeah. you so much. pleasure. Project director at Prerna, to have all of you with us here. I will now set this morning forward. I hope you have a good time. Right, Preeti. In the concept of children first, and children